Good morning all of you. In this video we will discuss about what is the context-free grammar and what are different type of normal forms of context-free grammar and how we can convert one normal form into another normal form. Context-free grammar. A context-free grammar consisting of a finite set of grammar rules. It is represented using the four tuples NTPS, where n signifies set of finite non-terminals and it is represented by capital letters like A, B. T is a set of terminals and generally we are using small letters like A and B to represent our set of terminals. Set of non-terminals and set of terminals, the intersection of these two sets must be null. It means any symbol that is a non-terminal can't be a terminal, and any symbol that belongs to a set of terminal cannot belong to a set of non-terminal. S is the starting non-terminal that is distinguished from other non-terminals, and every production is represented in the form of A implies alpha star, where this alpha belongs to set of terminals union and non-terminals star. इसका क्या मतलब है कि सारी की जो प्रोडक्शंस हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉन टर्मिनल होगा और राइट हैंड साइड पे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल की जीरो और मोर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव ग्रामर विद स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल ए and terminals A, B, C and P is the set of production where P is represented by A or A implies A, B, C. Similarly, we have to write down our context-free grammar using set of terminals, set of non-terminals, productions and set one non-symbol that is distinguished as starting non-terminal. Now, whenever a grammar is given to us, we can check whether the given sentence belongs to the language or not by using the derivation tree. A derivation tree or a parse tree is an ordered rooted tree that graphically represents the semantic information or string derived from the context-free grammar. कोई भी string किसी भी grammar से कैसे जनरेट होती है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, पार्स ट्री से. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्शन है लाइक ए इम्प्लाइज एक्स वाई जेड, अगर ये प्रोडक्शन यूज हो रही है देन इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए एंड इन द ट्री एक्स वाई जेड आर द चाइल्ड ऑफ द रूट ऑफ एक्स, जहाँ पर कि आपकी जो प्रोडक्शन का लेफ्ट हैंड साइड है वो रूट से रिप्रेजेंट करता है और जो भी राइट हैंड साइड पे है वो उसकी ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके वर्टेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. रूट वर्टेक्स मस्ट बी लेबल्ड आइदर बाय द स्टार्ट सिंबल, वर्टेक्स लेबल्ड बाय द नॉन टर्मिनल सिंबल्स एंड लीव्स. जब भी आपका पार्स ट्री का एंड होगा देन लीव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टर्मिनल सिंबल और बाय द एप्सिलॉन. This is how we are generating parse tree or a derivation tree from the given grammar. For example, suppose we have one grammar with starting with non-terminal S, A and B are the terminals and S is our starting symbol and the productions are given to us. S implies SS, S implies ASP and S implies null. Now using this grammar we want to generate whether the sentence A B A B B is derived from the given grammar or not. जब भी हमें ग्रामर कोड से सेंटेंस को डिराइव करना है ऑलवेज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल. अब आप देखिए कि आपके पास स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल एस है. अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एस को एस एस से रिप्लेस कर दीजिए या आप ए एस बी से रिप्लेस कर दीजिए. सपोज करो कि आप कहते हैं कि आपने इसे किससे रिप्लेस किया, एस एस से, तो हमारे पास एस एस किससे रिप्लेस हुआ, एस एस से. अब हमारे पास नेक्स्ट टाइम फिर से एस आ गया. एस के लिए फिर से ऑप्शन है कि या तो आप इसे एस एस से रिप्लेस कर दीजिए या ए एस बी से रिप्लेस कर दीजिए या नल से रिप्लेस कर दीजिए. सपोज दिस टाइम यू आर रिप्लेसिंग दिस एस विथ ए एस बी, राइट. नेक्स्ट टाइम दिस एस again you have option either replace with the SS, ASP or by epsilon. Suppose this time I am replacing this with epsilon. Now this S can be again replaced by ASB. Next time this S, suppose you are replacing it again with ASB. Next time you are replacing this S with epsilon. अब कौन सा सेंटेंस जनरेट हुआ है इस पार्स ट्री से, उसके लिए हमें लीफ नोड्स को ट्रेस करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ए एप्सिलॉन, बी ए
एप्सिलॉन बी बी, तो क्या सेंटेंस जनरेट हुआ? एप्सिलॉन मतलब नल, तो इसका मतलब ए एप्सिलॉन बी इज नथिंग बट इट इज ए बी, ए बी ए बी ए एप्सिलॉन बी 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 बी. It means this sentence is derived from this context free grammar using this parse tree. तो अब आप देखिए कि आप parse tree से ये चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस जनरेट हुआ बाय ट्रेसिंग ऑल द लीफ नोट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और इसी तरह से इस तरह को अपने प्रोडक्शंस को रिप्लेसमेंट दिए तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपका कौन सा सेंटेंस जनरेट हुआ है गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से. नाउ जब हमें डेरिवेशन ट्री ड्रॉ करना है, देयर आर टू टाइप ऑफ डेरिवेशन ट्रीज, आइदर यूजिंग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और बाय यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का क्या मतलब है कि आपने हर स्टेप पे जो आपका सबसे लेफ्ट में नॉन टर्मिनल आ रहा है पहले आपको उसे टर्मिनल से रिप्लेस करना है. और राइट मोस्ट डेरिवेशन का क्या मतलब है कि हर स्टेप में जो आपका सबसे राइट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल आ रहा है पहले आपको उसको टर्मिनल से रिप्लेस करना है, राइट. For example, suppose we have one grammar given by the productions x implies x plus x, x star x, x or a. These four productions are given to us. Now we want to generate the parse tree for the sentence a plus a star a. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल से. स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल क्या है आपका? x है. तो सपोज कीजिए आपने x से स्टार्ट किया. अब x को आपको दो ऑप्शन है, या तो आप x को x प्लस x से रिप्लेस कर दीजिए, x स्टार x से रिप्लेस कर दीजिए. सपोज आप कहते हो कि मैडम हमने इसको x स्टार x से रिप्लेस करना है, ठीक है. अब आपके पास सबसे लेफ्ट में जो नॉन टर्मिनल आ रहा है वो कौन सा है? दिस x, ठीक है. अब इस x के पास रिप्लेस करने की फिर से आपके पास चार ऑप्शंस हैं, या तो x प्लस x से रिप्लेस कर दीजिए, या x स्टार x से, या x से, या a से. आप कहते हैं कि इसे हमने रिप्लेस किया x प्लस x से, ठीक है. अब फिर से लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल क्या है? ये वाला x है. अब आपने इस x को रिप्लेस कर दिया a से, प्लस क्या है? टर्मिनल है. इस x को फिर से आपके पास चार ऑप्शन है, आपने इस x को रिप्लेस किया a से, स्टार क्या है? टर्मिनल है. फिर एक ही नॉन टर्मिनल रह गया, इसे भी आपने रिप्लेस किया a से. अब कौन सा सेंटेंस जनरेट हुआ? फिर से लेफ्ट से स्टार्ट करना है, a प्लस a स्टार a. तो a प्लस a स्टार a इज जनरेटेड फ्रॉम दिस पार्स ट्री. इट मीन्स दिस इज अ वैलिड सेंटेंस. अब जब इस वैलिड सेंटेंस को आपने डिराइव किया है, आपने देखा कि सारे जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे जो नॉन टर्मिनल आ रहे हैं आपने पहले उन्हें टर्मिनल से रिप्लेस किया. दैट्स वाई दिस डेरिवेशन इज नोन एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. Next, similarly for the same grammar, suppose you want to derive the sentence using the rightmost derivation. Again our sentence is a plus a star a. Again I have options. I am replacing this x with x star x, right. Now in the rightmost derivation आपका जो right hand side में सबसे पहला नॉन टर्मिनल है वो कौन सा है? this x, right. Suppose this time you are replacing this x with a because you have four productions. x implies x plus a, x star x, x और a. मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ? a से. अब आपके पास कौन सा नॉन टर्मिनल रह गया? दिस x. अब इस x के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन है? सपोज करो आप इसे रिप्लेस करते हैं x प्लस x से. अब आपके पास राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है? दिस x. इस x को आपने किससे रिप्लेस किया? a से. अब आपके पास कौन सा नॉन टर्मिनल है? दिस x. इसको आपने किससे रिप्लेस किया? a से. अब देखो सारे टर्मिनल्स आ गए. अब इनको चेक करो, a प्लस a स्टार a. तो आपका फिर से सेंटेंस क्या हुआ? a प्लस a स्टार a. बट इस पर आपने क्या किया? इस पर आपने जो आपका राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल था आपने उसे पहले टर्मिनल से रिप्लेस किया है. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डेरिवेशन इज नोन एज राइट मोस्ट डेरिवेशन. इट मीन्स जब भी हमें चेक करना है कि कोई भी सेंटेंस हमारा वैलिड सेंटेंस है या नहीं, आइदर वी हैव टू गो फॉर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और वी हैव टू गो फॉर राइट मोस्ट डेरिवेशन. नेक्स्ट, grammar. Ambiguous grammar. A grammar is said to be ambiguous grammar if more than one derivation tree for the same string can be generated using the context free grammar. Then the grammar is said to be ambiguous grammar.
इसका मतलब है कि अगर आप एक ही सेंटेंस के लिए एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से सेंटेंस जनरेट कर सकते हो या एक से ज़्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन से सेंटेंस को जनरेट कर सकते हो, देन योर ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस ग्रामर. Now for example, suppose we have productions x implies x plus x, x star x, x or a. We want to check whether this grammar is ambiguous grammar or not for the sentence a plus a star a. अब देखो ये सेंटेंस है, सपोज करो मैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ कर रही हूँ. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करने के लिए पहले मैंने x को किससे रिप्लेस किया, x प्लस x से. अब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में सबसे पहले x कौन सा आ रहा है, ये x आ रहा है. इस x को मैंने किससे रिप्लेस किया, सपोज a से. अब मेरे पास कौन सा एक नॉन टर्मिनल रह गया, ये वाला x. इस x को मैंने किससे रिप्लेस किया, x स्टार x से. अब लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल कौन सा है, दिस x. इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, इस a से. अब मेरे पास कौन सा नॉन टर्मिनल है, जो ये वाला x. इसको मैंने किससे रिप्लेस किया, इससे. अब देखो कौन सा सेंटेंस जनरेट हुआ, a प्लस a स्टार a. तो इसका मतलब है सेंटेंस कौन सा जनरेट हुआ, a प्लस a स्टार a. कौन सी डेरिवेशन यूज़ की है मैंने, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. ठीक है. अब सपोज करो सेम सेंटेंस जनरेट कर रहे हैं. मेरे पास मैंने सबसे पहले इस x को, पहले x को किससे रिप्लेस किया, x स्टार x से, राइट. अब मेरे पास लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, ये वाला x. इस x को मैंने किससे रिप्लेस किया, x प्लस x से. अब मेरे पास लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, दिस x. इसे मैंने रिप्लेस किया इस a से, राइट. अब लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, ये x. इसे मैंने रिप्लेस किया a से. अब लेफ्ट मोस्ट कौन सा है, ये वाला x. इसे किससे रिप्लेस किया, a से. अब कौन सा सेंटेंस जनरेट हुआ, a प्लस a स्टार a. इसका मतलब है फिर से सेंटेंस क्या जनरेट हुआ, a प्लस a स्टार a. देखो दोनों ही केसेस में आपने कौन सी डेरिवेशन यूज़ की है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. और दोनों ही ट्री किस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस a स्टार a को. इट मीन्स हम सेम सेंटेंस के लिए एक से ज़्यादा लेफ्ट मोस्ट पार्ट्स ट्री जनरेट कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस ग्रामर इज़ नोन एज एम्बिगुअस ग्रामर. तो आपको जब भी एम्बिगुअस ग्रामर चेक करनी है, आइदर यू हैव टू शो कि आपने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से एक से ज़्यादा जनरेट कर दिया या राइट मोस्ट डेरिवेशन में भी एक से ज़्यादा जनरेट कर दिया, देन योर ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस ग्रामर. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स. अ कॉन्टेक्स्टरी ग्रामर is in two type of normal forms, Chomsky normal form or Grebeck normal form. So you can write out CNF for Chomsky normal form and GNF for Grebeck normal form. First we will discuss Chomsky normal form. A contextual grammar is in Chomsky normal form if every production is one of these two types. अगर आपकी ग्रामर में सारी प्रोडक्शंस इन दो प्रोडक्शंस की तरह होती हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एक नॉन टर्मिनल है और राइट हैंड साइड पे दो नॉन टर्मिनल हैं, सपोज करो बी और सी. ठीक है, कोई भी दो नॉन टर्मिनल हैं. या लेफ्ट हैंड साइड पे एक नॉन टर्मिनल है और राइट हैंड साइड पे कोई भी एक टर्मिनल है. ठीक है, अगर सारी ग्रामर की सभी प्रोडक्शन इन दोनों प्रोडक्शन में से किसी एक टाइप से बिलोंग करती हैं, देन योर ग्रामर इज सेड टू बी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. सेकंड, अगर आपकी ग्रामर में एस जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल आपकी ग्रामर का है वो राइट हैंड साइड पर कहीं पर आता है, ठीक है, देन डज नॉट अकर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी रूल. आपका जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है वो ग्रामर में किसी भी जगह राइट हैंड साइड पे नहीं आना चाहिए. कब नहीं आना चाहिए, अगर एस इम्प्लाइज नल आता है. अगर एस इम्प्लाइज नल है तो वो राइट हैंड साइड पे किसी भी प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होना चाहिए. देन योर ग्रामर इज सेड टू बी इन चॉम्स्की normal form. Now we will use this algorithm to convert our grammar into Chomsky normal form. Step 1. If the starting symbol S occurs on the right hand side, then create a new starting symbol S dash and add a new production S dash imply S. अगर आपकी ग्रामर में आपका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल किसी भी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो आप एक नया नॉन टर्मिनल ऐड कर दीजिए
एस डैश और एक प्रोडक्शन ऐड कर दीजिए, एस डैश इम्प्लाइज एस, जहाँ पर एस आपका क्या है, पुराना स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, और अब आपका नया स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल क्या बन जाएगा, एस डैश। नेक्स्ट इज रिमूव नल प्रोडक्शंस। नल प्रोडक्शंस मैंने बताया कि कोई भी प्रोडक्शन जो इस टाइप की है, ए इम्प्लाइज नल, ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन से अगर नल स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, किसी भी प्रोडक्शन से अगर नल स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, देन दैट प्रोडक्शन इज नोन एज नल प्रोडक्शन। हाउ टू रिमूव दिस नल प्रोडक्शंस? फॉर दिस यू हैव टू विजिट माई previous lecture, simplification of context free grammar, how we have to remove null productions from the given grammar. Next, remove unit production. Any production of the form A implies B, कहीं जहाँ पर भी एक नॉन टर्मिनल से रिप्लेस हो रहा है, then that is said to be unit production. Now to remove unit productions, again you have to watch my previous video, simplification of context free grammar, to check how to remove unit productions from the given context free grammar. अब आपने क्या किया, आपने अपने ग्रामर की नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया, आपने ग्रामर की यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया. आफ्टर रिप्लेसिंग null and unit productions, now we have to replace our production. Suppose आपके पास कोई भी प्रोडक्शन है, A implies B1 B2 up to Bn, ठीक है. इसमें इतने सारे नॉन टर्मिनल्स यूज़ हो रहे हैं. अब हमने इसे रिप्लेस करना है ताकि हमारे सभी प्रोडक्शंस में मैक्सिमम 2 नॉन टर्मिनल है. तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे, आपने यूज़ किया कि सपोज करो A इम्प्लाइज B1, एक नॉन टर्मिनल लिया और एक नया नॉन टर्मिनल C ऐड कर दिया. और C क्या है, C है आपका B2 इम्प्लाइज Bn. जितने भी आपके ये सारे नॉन टर्मिनल्स बचे हैं ये आपने सारे C से ड्राइव किए. तो आपके पास देखिए ये प्रोडक्शन में सिर्फ कितने नॉन टर्मिनल्स हैं, 2 नॉन टर्मिनल्स हैं. सिमिलरली वी विल फॉलो दिस स्टेप टू कन्वर्ट अवर ग्रामर इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. Now we will take this example to convert our grammar into Chomsky normal form. Suppose our grammar is S implies A S A or AB, A implies B or S, A implies A or A implies B or S, B implies B और B implies epsilon. अब पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जहाँ पर हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल किसी भी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पे आ रहा है. तो आपने चेक किया A इम्प्लाइज S, S क्या है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल, ये राइट हैंड साइड पे आ रहा है. इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है, हमें एक नॉन टर्मिनल ऐड करना है जो क्या होगा. सपोज करो आप कहते हो एस डैश है, एस डैश इम्प्लाइज एस, एक प्रोडक्शन ऐड करनी है और एस डैश एक नॉन टर्मिनल ऐड करना है क्योंकि आपका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड पे आ रहा है. बाकी सारी प्रोडक्शंस क्या हैं आपकी, एस इम्प्लाइज ए एस ए और ए बी, ए इम्प्लाइज बी और एस, बी इम्प्लाइज बी और एप्सिलॉन. तो पहला स्टेप क्या था आपका कि अगर आपका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल किसी भी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पे आता है तो आपको एक नया नॉन टर्मिनल ऐड करना है, सपोज एस डैश, और उस एस डैश के लिए प्रोडक्शन ऐड करनी है एस डैश इम्प्लाई एस, जहाँ पर कि आपका एस क्या है, पुराना स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, राइट. सेकेंड स्टेप क्या कहे, आपको चेक करना है कि क्या आपकी ग्रामर में कोई भी नल प्रोडक्शन है. अगर नल प्रोडक्शन है तो आपको नल प्रोडक्शन को रिमूव करना है. अब आप देखिए इस ग्रामर में आपके पास क्या नल प्रोडक्शन है, नल प्रोडक्शन है बी इम्प्लाइज नल. अब बी इम्प्लाइज नल है इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बी इम्प्लाइज नल को रिमूव करना है क्योंकि ये नल प्रोडक्शन है. अब इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि बी कहाँ कहाँ अपीयर हो रहा है, ठीक है. अब इस केस में देखिए एस डैश इम्प्लाई एस आपका आ गया, एस इम्प्लाइज ए एस ए, इसमें बी नहीं है, एस इम्प्लाइज ए बी, ठीक है. अगर मैं बी को नल कर देती हूँ यहाँ पर तो आपका बी क्या बन जाएगा, सिर्फ ए. तो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्शन ऐड कर दी ए एस इम्प्लाइज ए. अगर बी नल नहीं होता देन इट इज़ ए इम्प्लाइज बी ओनली. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ ए इम्प्लाइज बी, अब बी अगर मेरा नल है, ठीक है, तो ये नल हो जाएगा. तो एक अगर नल नहीं है तो बी हो जाएगा. तो इसलिए मैंने यहाँ पर अगर नल है तो यहाँ नल ऐड कर दिया.
और बी इम्प्लाइज बी एप्सिलॉन, इसमें से मैंने एप्सिलॉन हटा दिया, तो अब मेरे पास प्रोडक्शंस क्या आ गई, ये आ गई। बट जैसे ही मैंने बी इम्प्लाइज नल हटाया, अब मेरे पास एक नई प्रोडक्शन ऐड हो गई है यहाँ पर, ए इम्प्लाइज नल। अब मुझे इसे भी हटाना है क्योंकि ये भी क्या है, नल प्रोडक्शन है। जैसे ये नल प्रोडक्शन है तो अब मुझे इसको रिमूव करना है, तो मुझे ये देखना है कि ए कहाँ कहाँ आ रहा है। अब ए कहाँ कहाँ आ रहा है, ए इम्प्लाइज एस ए यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है इसमें मुझे, अगर मैं ए को नल करती हूँ तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एस इम्प्लाइज एस। ठीक है, अगर मैं इसको ए टाइम नल करती हूँ तो मेरे पास क्या प्रोडक्शन आ जाएगी, एस इम्प्लाइज एस। अगर मैं पहले वाले ए को नल करती हूँ तो क्या आ जाएगा, एस ए। अगर मैं दूसरे वाले ए को नल करती हूँ तो क्या आ जाएगा, ए एस। अगर मैं दोनों को ही नल नहीं करती तो क्या आएगा, ए एस ए। ठीक है, इसी तरह से आपके पास देखिए ये ए बी है, ये ए है। अब ए प्लस कहीं पर भी राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो जैसे ही आप नल प्रोडक्शन रिमूव करेंगे, आपके पास प्रोडक्शंस क्या आ जाएंगी, आपके पास प्रोडक्शंस आ गई एस डैश इम्प्लाई एस, एस इम्प्लाइज एस ए बी और ए इम्प्लाइज एस इम्प्लाइज एस ए एस और एस ए इम्प्लाइज बी or S and S implies B. So after getting removing null productions, you will get all these set of productions, right? अब next step हमारा क्या है, देखिए अब आपने क्या किया, नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है कि आपने नल प्रोडक्शंस रिमूव करने के बाद क्या करना है, यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करनी है। अब इधर देखिए कि क्या हमारे इसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है। अब इसमें देखिए एस नोट इम्प्लाइज एस, ये एक यूनिट प्रोडक्शन है। ठीक है, एस इम्प्लाइज ए बी ए एस ए, कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। इसमें देखिए ए इम्प्लाइज बी और ए इम्प्लाइज एस, ये दोनों ही यूनिट प्रोडक्शंस हैं। अब यूनिट प्रोडक्शंस में हमें क्या करना होता है कि जहाँ पर भी अगर हमारे पास आता है ए इम्प्लाइज बी और अगर हमारे पास है बी इम्प्लाइज स्मॉल ए, तो हम इन दोनों प्रोडक्शन को किससे रिप्लेस कर देंगे, डायरेक्टली ए इम्प्लाइज ए से। अब इसमें देखिए आपका यहाँ पर क्या है, बी इम्प्लाइज बी, तो मैं इस बी को डायरेक्टली किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, यहाँ पर बी से। तो मेरे पास प्रोडक्शन क्या ऐड हो जाएंगी, बी ए इम्प्लाइज एस और ए इम्प्लाइज बी। मैंने इस बी को किससे रिप्लेस कर दिया, डायरेक्टली स्मॉल बी से, क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शन क्या है, बी है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास प्रोडक्शंस आ जाएंगी एस को किससे रिप्लेस करेंगे, एस की सारी प्रोडक्शन से। तो ये आ गया एस नॉट इम्प्लाइज ए एस ए बी ए एस ए और एस ए, और एस एम एल इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ए एस ए बी ए एस ए। ठीक है, तो सारी यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्शन सेट बना वो आपका ये बना। अगर अभी भी कोई डाउट है कि यूनिट प्रोडक्शंस को कैसे रिमूव करना है, देन प्लीज़ वॉच माय वीडियो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्टरी ग्रामर। इन दैट वीडियो I have explained how to remove unit productions and null productions from the given grammar. Next, after removing null productions and unit productions, now we have to convert our grammar into Chomsky normal form. अब Chomsky normal form में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज करो आपके पास एक प्रोडक्शन है एस नॉट इम्प्लाइज ए बी। ठीक है, अब हमारे पास चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब है कि या तो दो नॉन टर्मिनल हो राइट हैंड साइड पे या एक टर्मिनल हो। तो मैं इसे किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, मैंने इसे रिप्लेस किया एस नॉट इम्प्लाइज कैपिटल टी, सपोज आई एम राइटिंग हियर कैपिटल टी कॉमा बी वेयर दिस टी इम्प्लाइज ए। ठीक है, मैंने क्या किया, एक नया नॉन टर्मिनल टी ले लिया जो मेरा ऑलरेडी ग्रामर में नहीं था, उसको मैंने रिप्लेस किया, ए को रिप्लेस किया टी से। तो मेरे पास प्रोडक्शन क्या बन गई, एस नॉट इम्प्लाइज टी बी वेयर टी इम्प्लाइज ए। अब आप चेक कीजिए, देखिए ये आपका क्या है, एक टर्मिनल है, यहाँ पर आपके क्या है, दो नॉन टर्मिनल है। सो दिस ग्रामर इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। सिमिलरली आपके पास क्या है, एस इम्प्लाइज ए बी है, तो इसे भी मैं क्या लिख सकती हूँ, एस इम्प्लाइज टी बी वेयर टी इम्प्लाइज ए इज ऑलरेडी देयर। सो अगेन दिस प्रोडक्शन इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट ए इम्प्लाइज ए बी, इसे मैं भी लिख सकती हूँ ए इम्प्लाइज टी बी वेयर टी इज इम्प्लाइज ए इज ऑलरेडी देयर। नाउ ऑल दीज प्रोडक्शंस आर इन चॉम्स्की normal form. Similarly, once there is any production, suppose A implies
A B. I want to convert this production into Chomsky normal form. For that I can write out here A implies ATB, where T implies A. So this production is replaced by these two productions. Now in these two productions, T implies A. This is in Chomsky normal form. But what about ATB? For that, if I am writing here A implies CB and C implies AT, right? Now what I am saying, first two AT, this is replaced by C, and C implies AT and T implies A. Now you can see all the productions having two non-terminals on the right hand side and single terminal in the right hand side. This is how we can convert our grammar into Chomsky normal form. Now suppose this is our grammar. S implies AB or AB, A implies AB, AB or BA, B implies AB or B. Now we want to convert this grammar into Chomsky normal form. फर्स्ट स्टेप इज हमें ये चेक करना है कि क्या S राइट हैंड साइड पे किसी भी रूल में आ रहा है, S नहीं आ रहा है, सो देयर इज नो नीड टू ऐड वन मोर नॉन टर्मिनल. सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू चेक इज देयर एनी नल प्रोडक्शन, no null production. Next, is there any null unit production? No unit production. Now if there is no null production, no unit production, next step is now we have to apply how to convert this into Chomsky normal form. Now first production, S implies AB. This production is already in Chomsky normal form because right hand side contains two non-terminals. Next, S implies AB. Now this is not in Chomsky normal form because Chomsky normal form says either on the right hand side single terminal is there or two non-terminals is there. Now there are two terminals, so what we have to do here, we are adding one terminal XA and one non-terminal XB. XA is replaced A and XB is replacing B. So in that case I am writing here S implies AB, first production, and second production AB. This is replaced by XA XB, where XA and XB are two non-terminals. ठीक है, और XA को किससे रिप्लेस कर रहे हो, A से, XB को किससे रिप्लेस कर रहे हो, B से. Now you can see this production, S implies AB, two non-terminals, X implies XA AB, two non-terminals, XA implies A, one terminal, XB implies B, one terminal. So all these productions are in Chomsky normal form, right? Next, A implies AB, AB or BA. Now A implies BA. This is already in Chomsky normal form. But what about this AB, AB? If I am replacing this AB, AB, suppose I am writing here A implies, suppose I am writing this AT, right? And this T implies BAB, right? अब मैंने क्या किया, AB को मैंने रिप्लेस कर दिया AT से, और T मैंने क्या कर दिया, T एक नया नॉन टर्मिनल ले लिया जो रिप्लेस कर रहा है BAB को. ठीक है, अब मेरे पास ये तो ठीक हो गया, ये ठीक हो गया. नेक्स्ट, अब मेरे पास T क्या है, TB इम्प्लाइज AB. अब मुझे इसे किससे रिप्लेस करना है, मैंने यहाँ लिखा T इम्प्लाइज T डैश, मैंने इसे रिप्लेस किया B. T इम्प्लाइज BAB, मैंने इसे रिप्लेस किया T इम्प्लाइज BT डैश एंड दिस T डैश इम्प्लाइज AB. ठीक है, अब मैंने फिर से एक टर्मिनल को, नॉन टर्मिनल को छोड़ा B, और बाकी जितना भी है उसे किससे रिप्लेस कर दिया, T डैश से, और T डैश क्या आ गया, AB. अब देखिए B इम्प्लाइज AB क्या बन गया, T इम्प्लाइज BT डैश एंड T इम्प्लाइज AB. ये दोनों प्रोडक्शंस भी क्या हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हो गई. ठीक है, अब देखो आपके पास क्या क्या प्रोडक्शंस बन गई, आपके पास प्रोडक्शंस बन गई S इम्प्लाइज AB और XA XB. ठीक है, आपके पास प्रोडक्शन आ गई XA इम्प्लाइज A, XB इम्प्लाइज B. ये सारी जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है. सिमिलरली A के लिए आपके पास प्रोडक्शंस आ गई हैं A इम्प्लाइज AT. ठीक है, T इम्प्लाइज BA
T implies B T dash, right, and T dash implies AB, राइट और एक आपके पास प्रोडक्शन ए की और भी है, ए टी, दूसरी है बी ए, ठीक है। अब देखिए कोई भी प्रोडक्शन इनमें से ऐसी है जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल, सिंगल टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, दो नॉन टर्मिनल, ठीक है। अब ये सारी प्रोडक्शंस आ गई। अब हमारे पास क्या रह गया, बी इम्प्लाइज ए बी। इस बी इम्प्लाइज ए बी को भी मैं लिख सकती हूँ बी इम्प्लाइज एक्स ए एक्स बी, जो कि एक्स ए क्या है, इम्प्लाइज ए है, और एक्स बी क्या है, इम्प्लाइज बी है। और सेकंड प्रोडक्शन मेरे पास क्या है, बी इम्प्लाइज बी। अब देखिए ये सारी प्रोडक्शंस आपकी किसको फॉलो करती हैं, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को, राइट। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट आवर ग्रामर इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। अ कॉन्टेक्स्टरी ग्रामर इज सेड टू बी इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म इफ all the productions are in the form of A implies AX। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे पहला टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक से ज़्यादा, ज़ीरो, एक्स स्टार, ज़ीरो और मोर टर्मिनल्स, नॉन टर्मिनल्स ओनली, ठीक है। जैसे A इम्प्लाइज ABC, ठीक है, पहला टर्मिनल है, उसके बाद दो नॉन टर्मिनल हैं, तो दिस इज इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। A इम्प्लाइज A, पहला टर्मिनल है, राइट हैंड साइड पे कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। A इम्प्लाइज ABCD, ठीक है, पहला टर्मिनल है, फिर चार नॉन टर्मिनल्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कहते हो कि A इम्प्लाइज ABA, तो ये ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म नहीं है। ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म का मतलब है राइट हैंड साइड पे पहला टर्मिनल फॉलोड बाय जीरो और मोर नॉन टर्मिनल्स ओनली, देन योर ग्रामर इज सेड टू बी इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट, नाउ वी विल यूज दिस एल्गोरिथम टू कन्वर्ट आवर ग्रामर इनटू ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। पहला रूल वही है कि अगर आपका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड में आ रहा है तो आपको एक नया नॉन टर्मिनल एस डैश ऐड करना है और एक प्रोडक्शन ऐड करनी है एस डैश इम्प्लाई एस, ठीक है। सेकेंड रूल वही है, आपको ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म की तरह सारी नल प्रोडक्शंस रिमूव करनी है, फिर सारी यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव करनी है, ठीक है। इसका मतलब है पहले तीन स्टेप जो ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं कि अगर एस हमारा स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल राइट हैंड साइड पे आ रहा है तो हमें एक नया नॉन टर्मिनल ऐड करना है और एक प्रोडक्शन ऐड करनी है एस डैश इम्प्लाई एस, फिर हमें नल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है, फिर हमें यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना है, then we will use some direct and indirect left recursions using some substitutions to convert our grammar into Grebeck normal form. Now for example, suppose this is our grammar, convert the following grammar into Grebeck normal form. अब देखो पहले हमें चेक करना है कि क्या एस राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है। पहला देखिए एस राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर पहला स्टेप आ रहा है तो हमें इसको कन्वर्ट कर एक नई प्रोडक्शन ऐड कर देनी है। तो हमने एक नई प्रोडक्शन ऐड कर दी एस डैश इम्प्लाई एस, ठीक है, हमने एक नया नॉन टर्मिनल ऐड कर दिया, उसके बाद हमने इसको चेक किया और उसकी एक प्रोडक्शन को ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमने अपनी ग्रामर को चेक किया कि क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन है, क्या कोई नल प्रोडक्शन है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, नल प्रोडक्शन नहीं है। फिर हमने अपने ग्रामर को रीराइट कर दिया चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो देखिए आपकी ये ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है जहाँ पर सारे नॉन टर्मिनल्स हैं, राइट हैंड साइड पे सारे दो नॉन टर्मिनल हैं और एक सिंगल टर्मिनल है। तो आपकी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपने सारे नॉन टर्मिनल्स को रीनेम करना है। और रीनेम कैसे करना है, जो आपका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है उसे आप रीनेम करेंगे A1 से, ठीक है। देखिए आपके पास एस डैश स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, एस डैश को रीनेम करेंगे आप A1 से, एस को हमने रीनेम किया A2 से, एक्स आपके पास नॉन टर्मिनल है, एक्स को रिप्लेस किया मैंने A3 से, आपके पास एक नॉन टर्मिनल है, इसे हमने रिप्लेस किया A4 से, और बी एक नॉन टर्मिनल है, उसे आपने रिप्लेस किया A5 से, ठीक है।
सभी नॉन टर्मिनल्स को रीनेम करना है। रीनेम इस तरह से करना है कि जो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है दैट इज ऑलवेज रीनेम्ड बाय वन नॉन टर्मिनल A1. दिस A1, A2, A3, A4, A5 these all represents different नॉन टर्मिनल्स। ठीक है, जब आप इन्हें रीनेम कर लेंगे तब आप अपने प्रोडक्शन को फिर से रीराइट करेंगे तो अब आपका देखो एस डैश इम्प्लाई एस था, ये क्या बन जाएगा A1 इम्प्लाइज A2, एस आपका क्या था A2, एक्स आपका क्या था A3, तो आपका ये क्या बन गया A2 इम्प्लाइज A3 A4, एस इम्प्लाइज BB, ये क्या बन गया आपका A2 इम्प्लाइज A5 A5। ठीक है, B क्या आपका A5 इम्प्लाइज B एंड एस बी क्या बन जाएगा A2 A5, A3 एस एक्स क्या है आपका A3 इम्प्लाइज B, ए क्या है आपका A4 इम्प्लाइज B। तो सभी नॉन टर्मिनल्स को रीनेम करने के बाद हम अपने प्रोडक्शंस को रीराइट करेंगे यूजिंग न्यू नेम्स। ठीक है, नाउ रीनेम करने के बाद अब हमें क्या करना है, हम अपने सभी प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी सारी प्रोडक्शंस किस फॉर्म में आएंगी, AI इम्प्लाइज AJ, ठीक है, या AI इम्प्लाइज AAJ। इसका क्या मतलब है, आपको ये चेक करना है कि अगर आपकी प्रोडक्शन AI इम्प्लाइज AJ की फॉर्म में है देन दिस I मस्ट बी लेस देन J। ठीक है, जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट आ रही है और जो राइट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट आ रही है, ये जो J की वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन I। इसकी वैल्यू I से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब है अगर आपके पास सपोज आप कहते हैं A2 इम्प्लाइज A3 A5 है, तो हमें सिर्फ पहला देखना है कि इसकी जो सबस्क्रिप्ट है क्या इस लेफ्ट हैंड साइड की सबस्क्रिप्ट से बड़ी है। अगर बड़ी है तो ठीक है, नहीं तो हमें उसे चेंज करना है। ठीक है, पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या सारी सबस्क्रिप्ट राइट हैंड साइड पे हैं वो बड़ी हैं। देखिए A1 इम्प्लाइज A2, तो 2 हमारा 1 से बड़ा है, ठीक हो गया। A2 इम्प्लाइज, सिर्फ पहला लेटर देखना है, A2 इम्प्लाइज A3, 3 2 से बड़ा है, ठीक है। A2 इम्प्लाइज A5, 5 2 से बड़ा है, ठीक है। A5 इम्प्लाइज B, टर्मिनल है, इसे नहीं चेक करना कि अगर आपकी प्रोडक्शन में पहला टर्मिनल आ गया तो आपको चेक नहीं करना। A5 इम्प्लाइज A2, देखो अब इसमें 2 है वो A5 से छोटा आ गया, अब हम इस पे काम करेंगे। पहले देखिए A3 इम्प्लाइज B आ गया और A4 इम्प्लाइज A आ गया, तो बाकी सारी प्रोडक्शंस ठीक हैं। सिर्फ एक प्रोडक्शन आपको मिली है जहाँ पर आपके पास A5 इम्प्लाइज A2 A5 है, जिसमें आपके पास AI इम्प्लाइज AJ और J की वैल्यू आपके पास I से छोटी है। ठीक है, अब जब J की वैल्यू I से छोटी हो जाती है तो अब हमें उस प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद अब उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस रूल लगाने हैं। ठीक है, अब उसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस रूल कैसे लगेंगे, अब देखिए सब्स्टिट्यूशंस रूल्स कैसे लगेंगे। अब देखिए आपने लिखा यहाँ पर, मैं सिर्फ A5 इम्प्लाइज A2 A5 कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम A2 को रिप्लेस करेंगे। A2 को रिप्लेसमेंट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं A2 इम्प्लाइज A3 A4 एंड A2 इम्प्लाइज A5 A5। अब मैं इस A2 को रिप्लेस कर रही हूँ इन दोनों ऑप्शन से वन बाय वन। A5 इम्प्लाइज A2 को मैं रिप्लेस करती हूँ A3 A4 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा A3 A4 A5, ये वाला A5 तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ A2 को रिप्लेस किया A3 A4 से। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है A2 इम्प्लाइज A5 A5, तो आपके पास प्रोडक्शन क्या बन जाएगी A5 A5 और ये वाला A5 आपके पास एज इट इज रह जाएगा। तो अब आपके पास A5 की प्रोडक्शंस क्या आ गई हैं A3 A4 A5 A5 और इम्प्लाइज A5 A5 A5। ठीक है, अभी भी आपके पास जो प्रोडक्शन है वो AI इम्प्लाइज AJ, अभी भी J की वैल्यू I से कम है। अब हम क्या करेंगे A3 के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब A3 की वैल्यू क्या है B है, अगर मैं इसे फिर से सब्स्टिट्यूट करूँगी तो अब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा A5 इम्प्लाइज A3 क्या आएगा
बी, तो ये क्या बन जाएगा BA4 A5, ठीक है। और सेकंड प्रोडक्शन क्या है A5 A5 A5, ये ऑप्शन एज इट इज़ रहेगी। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा A5 A5 A5, तो ये प्रोडक्शंस एज इट इज़ रह जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है A3 को B सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास जो प्रोडक्शंस बनी है वो बनी है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि व्हाट इज़ द लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन का क्या मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्शन A इम्प्लाइज A अल्फा, कोई भी नॉन टर्मिनल जिस प्रोडक्शंस को लिख रहे हैं वो अपने आप से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आता है देन दैट प्रोडक्शन इज सेड टू बी लेफ्ट रिकर्जन। अब लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करने के लिए अब हमें क्या करना है, पहले हमें वो सब प्रोडक्शंस लेनी हैं जो सेम सिंबल से स्टार्ट नहीं हो रही हैं। तो जो सेम सिंबल से स्टार्ट नहीं हो रही हैं वो है हमारे पास B, ये आपने जो लिया BA4 A5, तो BA4 A5 और B है, ठीक है। इसके साथ इन्हीं प्रोडक्शंस में हमने एक नया नॉन टर्मिनल ऐड कर दिया Z, तो ये बन जाएगा BA4 A5Z एंड BZ। और Z हमारे पास क्या आ जाएगा A5 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 Z। जो प्रोडक्शन सेम से स्टार्ट होती है वो यहाँ कवर होती हैं। इसके लिए आपको ये चेक करना है कि हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। सो रिमूविंग दिस लेफ्ट रिकर्जन, नाउ यू हैव प्रोडक्शंस फॉर A5 जो B से स्टार्ट हो रही है, यहाँ भी B से स्टार्ट हो रही है, ये भी B से स्टार्ट हो रही है, ये भी B से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ आपका क्या है Z A5 A5, तो अब यहाँ पर भी आपके पास AIAJ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अब आपने पास क्या किया, जब आप सभी सब्स्टिट्यूशंस करोगे तो आपके पास पहला तो आपके पास था A1 A2, A2 इम्प्लाइज A3 A4, A3 इम्प्लाइज B, A4 इम्प्लाइज A, A5 की ये प्रोडक्शंस ऐड हो गई हैं और Z की ये प्रोडक्शंस हो गई हैं। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी प्रोडक्शंस हैं जो ऑलरेडी ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में हैं। देखो ये प्रोडक्शन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में है, ये प्रोडक्शन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में है, ये प्रोडक्शंस ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में है। क्यों, राइट हैंड साइड पे पहला सबका सिंबल टर्मिनल है फॉरवर्ड बाय 0 और मोर नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। अब देखिए इस केस में Z में क्या है A5 A5, अगर मैं इस A5 को 1 करके सारी A5 की प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दूंगी तो मेरा Z भी क्या हो जाएगा ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सारी 1 करके सारी ऑप्शंस को आप रिप्लेस करोगे तो Z आपका क्या बन जाएगा, आपका Z आ जाएगा Z इम्प्लाइज, पहले A5 को रिप्लेस करोगे किससे BA4 A5, ठीक है। और ये A5 एज इट इज रहेगा, ठीक है। और फिर A5 को किससे रिप्लेस करोगे B से, और ये A5 एज इट इज रहेगा। फिर A5 को किससे रिप्लेस करोगे BA4 A5Z, और ये A5 इस तरह से रहेगा। फिर A5 को किससे रिप्लेस करोगे BZ से, और ये A5 एज इट इज रहेगा। तो ये आपको किससे रिप्लेस किया, इससे। सिमिलरली A5 को रिप्लेस करोगे अगेन, देन दीज प्रोडक्शंस ऑल आर इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। तो Z आपका ग्रीबैक में आ जाएगा। Z अगर ग्रीबैक में आएगा तो अगर आप A2 की जगह A3 और A5 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो A2 ग्रीबैक में आ जाएगा। फिर A2 की वैल्यू A1 में सब्स्टिट्यूट करोगे देन A1 विल बी इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। तो अगेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ओनली द वैल्यूज यू विल गेट ऑल दिस प्रोडक्शंस इन द फॉर्म ऑफ A implies A alpha where first symbol is terminal, राइट। सभी प्रोडक्शंस को रीनेमिंग करने के बाद जब आप प्रोडक्शंस लिखोगे तो आपके पास ये सब प्रोडक्शंस आ जाएंगी। अब फिर से आप क्या करोगे, जो आपने S' को रिप्लेस किया था A1 से, S को रिप्लेस किया था A2 से, अब इनको आप फिर से क्या करोगे, A2 की जगह क्या करोगे S कर दोगे, A1 की जगह क्या कर दोगे S' कर दोगे। तो अगेन आप क्या करोगे, आपकी जो सारी प्रोडक्शंस हैं वो किस फॉर्म में आ जाएंगी S' में, S में, X में, AB में और AB। जब आप इन्हें फिर से रीसब्स्टिट्यूट करोगे देन यू विल गेट योर ग्रामर इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछना, मुझे अपने आंसर शेयर करना। थैंक यू।